होती ऑनलाइन है। Okay. So it's like the field lines, they were originating, I mean, there is one positive charge, another positive charge, and from positive charge, the field line generally, or when the field lines originate from positive charge. So what happens is, पहले positive charge से भी field lines originate कर रही है हर direction में, और दूसरे वाले से भी कर रही है originate. ऑब्वियसली पहले वाले का फील्ड लाइंस और दूसरे वाले का फील्ड लाइंस किसी ना किसी पॉइंट पे दे आर गोइंग टू कम इंटरैक्ट, और ये इंटरेक्शन जो होगा वो एक दूसरे को अपोज करने वाला होगा। क्यों? क्योंकि दोनों के डायरेक्शंस क्या है, ऑपोजिट है। एक इस तरफ रखा हुआ है और यहाँ पे रखा हुआ है, तो इसका वाला इस तरफ जाने की कोशिश करेगा और इसका वाला फील्ड लाइंस इस तरफ जाने की कोशिश करेगा, and both are going to oppose each other. Now this opposition is basically the repulsion, the physical repulsions which we see. Like charges repel each other. Sorry. Like charges are repelling each other because their field lines are opposing each other. Is that okay? सिमिलरली निगेटिव चार्ज अगर लेता हूं तो निगेटिव चार्ज का बिहेवियर क्या है, द फील्ड लाइंस आर गोइंग टू कल्मिनेट एट इट, ठीक है, और कन्वर्ज एट इट। सिमिलरली दूसरे वाले के यहाँ पे फील्ड लाइंस आकर के कन्वर्ज करेंगे। अब यहाँ पर किसी एक पॉइंट पर बीच में, अगर इन दोनों चार्ज के बीच के किसी पॉइंट पर देखेंगे, इसका फील्ड लाइंस कैसा होगा, इसकी तरफ आ रहा होगा, और इस वाले चार्ज का फील्ड लाइंस यहां से अगेन इस तरफ आ रहा होगा, बट इन दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, अगेन अपोजिट होगा। ठीक है, फिर से रिपल्सन होगा। क्यों? क्योंकि इनके फील्ड लाइंस क्या है, एक दूसरे को फिर से अपोज कर रहे हैं। When both things are negative or both things are positive, their field lines are basically opposing each other, and therefore they are repelling. Are we getting this point? बेसिक बात समझ में आई आप लोगों को? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या बोला मैंने, पॉजिटिव चार्ज पर फील्ड लाइन, सेम फील्ड लाइंस ओरिजिनेट करते हैं। द फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज and the field lines culminate or converge at negative charge. ये दो चीजें क्लियर है? अच्छा, इसमें तीसरी चीज जो होती है, मैं यहां पर एक बार लिख भी देता हूं, यू गाइस कैन नोट इट डाउन। कुछ एक और चीजें हमने बीच में पढ़ी, लाइक चार्जेस रिपेल। हाँ बेटा, तो मैंने क्या लागू इलेक्ट्रिसिटी आपका देखिए अभी देखिए यार, तो देखने देखो 12 मैं पीडीएफ भेज दूंगा लेक्चर के बाद में, घर पे नोट कर सकते हो जो चीजें छूट गई। ठीक है, अभी फिलहाल 4 नंबर से नोट करना चालू कर।
थोड़ा फोटो दिखा ताकि आपको द लाइट में ये बोल चुका ऑलरेडी सारी बातें बेटा। द लाइट ऊपर नहीं देखना पड़ेगा। repel each other because their field lines opposes other. Opposite charges attracts because their field lines add फ्लैट के बाद or support each other. Sixth point, the field lines always originates from positive charge and field lines always converge at negative charge. So if there is a positive charge over here, the field lines are going to be like this. For a negative charge. The field lines are going to behave like this. They all are going to converge. Is that okay? क्या हो बेटा? सर या आदित्य ने बोला हो गया, फिर सिद्धार्थ ने बोला पूछा किसने, उसने बोला तुझे बोला ही नहीं, तो याद नहीं कर लिया।
Very good. Thank you. There are two kinds of electric charges. We call them positive and negative charge. The existence of these electric charges can be demonstrated by following experiments. Okay. Explanation of charging is given on the next page. So we'll wait till then to explain the process of charging. Okay, यहाँ पर basic idea दिया गया है. How, I mean, not how, why, just के repulsion होता है and how we demonstrate that repulsion is taking place. Experiment 1, take a glass rod A, rub it with silk to make it charged. Suspend the charged rod A with a thread and then take another glass rod B, rub it with the silk and bring it near one end of the suspended rod A, as shown in figure 8.21. You will observe that suspended glass rod A gets repelled, that is, it moves away. Take an ebonite rod A and rub it with fur to make it charged. Suspend the charged rod B with a thread. Now take another ebonite rod B. Rub it also with fur and bring it near one end of the suspended rod A. You will observe that suspended ebonite rod A gets repelled. Third, now suspend the glass rod A rubbed with silk by means of a thread and bring ebonite rod B rubbed with fur near one end of the rod A, as shown in figure 8.23. You will observe that suspended charged glass rod A gets attracted towards the charged ebonite rod B. In all the above steps, if the rod have not been rubbed with silk or fur, we would have found that there is no repulsion or attraction between the rods. Thus, attraction or repulsion between the rod arises only when they are charged. The behavior of attraction and repulsion is arising because of charging. For a neutral body, there is, if two neutral bodies are interacting, there won't be any repulsion or attraction. Yes, beta. सर अगर हम ट्राई करेंगे कि एक को लेकर फर्स्ट स्टेप्स को रुक जाओ, एक चीज मैं नोट कर दूं जिसको आप लोग भी नोट कर लो. एक सेकंड बेटा, मैं पहले नोट कर देता हूँ, फिर आप क्वेश्चन पूछो, मैं डिटेल में रिप्लाई करूंगा आपको. एक मिनट. अच्छा, वो वैसे बोलो. एक सेकंड. द न्यूट्रल बॉडी ब्रैकेट में अनचार्ज do not attract or repel each other when brought closer. Neutral body that is uncharged do not attract or repel each other when brought closer. ठीक है? That means they do not interact. हाँ, अब query पूछो आपने. हाँ. उसके साथ हम करते हैं फर्स्ट को एंड हमें दूसरा रॉड मिलता है उसको से रब करते हैं. फिर हम ट्राई करते हैं कि दोनों रॉड स्टिक होगा. दोनों रॉड स्टिक करने को ट्राई करते हैं. हाँ, स्टिक होगा, अट्रैक्ट करते हैं वो. क्योंकि मटेरियल्स अलग है. एक रॉड को फोर्स से करना, दूसरे रॉड को स्टिक. चार्ज तो होगा क्या? क्या होगा? रिपेल या अट्रैक्ट? क्या होगा? अट्रैक्ट. हाँ, होगा. ठीक है. रॉड अलग अलग ले रहे हो, सॉरी,
रबिंग अलग अलग मटेरियल के अगेंस्ट कर रहे हो, रॉड एक ही ले रहे हो, एक ही मटेरियल का ले रहे हो ना, ठीक है, विल डिपेंड, ठीक है, इसके लिए कोई सर्टेन आंसर नहीं है कि रिपेल ही करेगा या अट्रैक्ट करेगा। ओके, तुम्हारा डाउट, ठीक है। सर्टेनिटी के साथ हम नहीं बोल सकते हैं, चांसेस ज्यादा ये है कि दे आर गोइंग टू बी अट्रैक्टिंग ईच अदर। हाँ बोलिए बेटा। रॉड का तो नहीं हो सकता अलग मटेरियल, क्या क्या? रॉड का मटेरियल अलग हो हाँ, तो अट्रैक्ट करेगा। रॉड का मटेरियल अलग अलग होगा तो जैसे अट्रैक्ट इसका करेगा, रॉड मतलब के हाँ, रॉड का मटेरियल अलग अलग है और अलग अलग चीजों के साथ कर रहे हैं तब तो अट्रैक्ट कर ही रहा है ना। सर अगर क्या होगा अगर हम रॉड के भी मटेरियल अलग है पर सीजर सीजर सेम है, जैसा मतलब जैसा हम कर रहे हैं, जैसे हाँ, उसमें सर्टेन नहीं है कि अट्रैक्ट ही करेगा ऑल द टाइम या रिपेल ही करेगा ऑल द टाइम। 50 50 नहीं है, देर आर सम लॉजिक्स, उसको समझेंगे हम लोग। हाँ बोलो बेटा। सर लेकिन अगर जैसे रॉड भी डिफरेंट हो और मटेरियल भी दोनों डिफरेंट हो तो फिर इसलिए अट्रैक्ट करेगा ना। हर बार अट्रैक्ट ही करेगा ऐसा नहीं है जरूरी, इस केस में कर रहा है। तो इस केस में क्यों कर रहा है? हाँ, तो इसका मतलब है कि कुछ और चीजें हैं जिनको हमको पहले समझनी पड़ेंगी ना, तो वो तो पॉजिटिव हो उसके जाता लिए है वेट negative। करो भी थोड़ा सा, ठीक है। वो रबिंग का जब हम समझ रहे होंगे वहां पर आपको क्लियर होगा। इज दैट ओके? तो सर हाँ बोलो बेटा। न्यूट्रल मॉड्यूल ऑन चार्ज है तो मतलब इट टाइप नॉर्मली होगी, मतलब आएगा पास तो फिर आएगा और नहीं तो फिर नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? आएगा। मतलब इट एक्ट लाइक अ नॉर्मल बॉडी ना, जैसे ये फोन है और ये बुक है, नॉर्मली एक्ट करेगा। हाँ, कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। In step 1, both glass rods have been rubbed with silk. That is, they must have similar kind of charge. It is seen that these rods, when brought near each other, repel each other. Hence, it is concluded that like charges repel each other. Similar is the case in step 2. Now, in step 3, it is seen that glass rod rubbed with silk attracts the ebonite rod rubbed with fur when brought near each other. Therefore, it is concluded that charge on the glass rod rubbed with silk must be opposite to the charge on the ebonite rod rubbed with fur. This experiment suggests that like charge repel, as in figure 8.21 and figure 8.22, while unlike charges attract each other, as in figure 8.23. Thus, from this experiment, we can conclude that there are two kinds of charges having two different polarity, positive and negative. And like charges always repel each other, unlike charges are going to attract each other. When other substances are charged by rubbing and are tested in a similar manner, it is found that they fall into following two categories. Pehla, substances which has similar charge as that developed on a glass rod when it is rubbed with silk are said to have positive charge, or they are said to have said to be positively charged. That they fall into following two categories: substances which have similar charge as that developed on a glass rod when it is rubbed with silk are said to have positive charge, or they are said to be positively charged. Substance which has similar charge as that developed on an ebonite rod when it is rubbed with fur are said to have negative charge, or they are said to have negatively charged. Thus, there are two kind of charges, a positive charge and a negative charge. यहाँ पर एक चीज क्लैरिफाई किया गया है which we will have to understand and note basically. When we are rubbing glass with silk,
it is acquiring positive charge, and when we are rubbing ebonite with fur, ebonite with fur, it is acquiring negative charge. सिल्क के अगेंस्ट किसको रब कर रहे हैं? ग्लास रॉड, ग्लास रॉड. और एबोनाइट को किसके अगेंस्ट कर रहे हैं? फायर. तो एबोनाइट क्या हो गया? नेगेटिवली चार्ज एंड ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज. वेरी गुड. नाउ सी, द आइडिया इज कोई भी बॉडी अगर हम लेते हैं दैट इज ऑलवेज अनचार्ज बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन दैट बॉडी आर परफेक्टली द सेम. इज दैट ओके? कोई भी बॉडी अगर हम उठाते हैं इन जनरल, इट विल ऑलवेज गोइंग टू हैव सेम नंबर ऑफ protons and electrons. Protons and electrons are the basic unit of charge which exist in every material. Sorry, प्लस एंड माइनस, plus प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन. हाँ, तो क्या करना है उनका? अच्छा, ठीक है. So protons, the positively charged entity, and electrons, the negatively charged entity, are going to exist in all the substances or all the materials, and they are going to be equal in count for all the materials. ठीक है? Till those materials are neutral. दूसरी चीज ये होती है, everything or every material has their own capacity to hold their electrons. Is that okay? Different things will have different capacity to hold them. Those which has lesser capacity to hold them can easily discharge them or can easily give it away. ठीक है? Whereas those which hold them very strongly will not be able to give it to the other entity. ठीक है? So जो easily दे देते हैं, एक रीजन तो ये हो जाता है. दूसरा ये होता है, there are certain materials, especially the conductors, रबिंग के लिए हमेशा उनको किसी चीज के कांटेक्ट में लेके जाएंगे. जैसे कॉपर है, कॉपर को रब कर रहे हैं इसके अगेंस्ट, वुड के अगेंस्ट, तो कॉपर को वुड से टच करेंगे हम. ठीक है? उसको जब टच करते हैं या टचिंग पे व्हाट हैपेंस इज द मोमेंट यू टच टू थिंग्स, ठीक है, द चार्जेस आर गोइंग टू फ्लो फ्रॉम. अगर कोई रबिंग के टाइम पर अगर किसी एक में चार्ज क्रिएट भी हो गया, मतलब वहां से चार्ज ट्रांसफर हो गया किसी दूसरे पर, और इस पे नेट कोई चार्ज आ गया, दूसरे पर भी नेट कोई चार्ज आ गया, बट द मोमेंट दे आर ब्रॉट टुगेदर इन कॉन्टैक्ट, ठीक है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर चार्ज ऑटोमेटिकली फ्लो कर जाता है. इफ एट ऑल दे आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट. इज दैट ओके? कंडक्टर्स के साथ क्या होता है, वो बहुत ज्यादा सपोर्टिव होते हैं फ्लो ऑफ चार्ज को लेकर के. सो मान लो हम वुड को कॉपर पे या कॉपर को वुड पे रब कर रहे हैं और वहां पर एक एंटिटी चार्ज हो गई, या दोनों एक चार्ज होगी तो दोनों चार्ज होएगी, क्योंकि एक पर से निगेटिव चार्ज निकल करके यानी इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे वाले पर चला जाएगा. जिस पे जाएगा वो निगेटिव चार्ज हो जाएगा, और जिस पर से जाएगा, the one which is going to remove its electron and transfer it to the other entity, that entity which has just lost the electron will become positively charged, whereas the other which has just gained the electron or have received the electron will become negatively charged. Is that okay? बोलो. सर ये जो आपने अभी बोला जो इलेक्ट्रॉन देगा ये कंडक्टर्स के बीच में है? नहीं, अब मैं आगे बता रहा हूं, ये किसी भी मटेरियल के लिए ट्रू है. ठीक है?
अगर कंडक्टर होते हैं तो व्हाट हैपेंस इज दूसरे वाले पर जो चार्ज गया है उसको वो अचानक से मतलब आई मीन इंस्टेंटेनियसली दे अगेन एब्जॉर्ब देम बैक। ठीक है, कंडक्टर्स की क्या प्रॉपर्टी होती है? दे कैन इजीली कंडक्ट द चार्जेस, they can allow the charges to move on their body from one end to other end instantaneously। ठीक है, अब यहां पे रब किया, यहां पर ट्रांसफर हुआ, ठीक है, बट इसको थोड़ी दूर आगे और बढ़ाया मैं तो वो वापस से उस चार्ज को बैक ले लेता है। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? सो जब मैं कांटेक्ट पे रब कर रहा हूं, इस जगह से उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया और अगले वाले प्लेस पर हम गए तो उसने उसी इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लिया वापस से। ठीक है, सो नेट चार्जिंग नहीं हो पाती है कंडक्टर्स की। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? बाय रबिंग चार्जिंग ऑफ कंडक्टर्स इज नॉट पॉसिबल, इट इज पॉसिबल ओनली फॉर, शुरू में हम लोगों को ऐसे कुछ नाम दिए गए थे, बताया गया था, कहाँ दिया गया था, हाँ, only insulators, do you know only insulators and isolated conductors। isolated conductor का मतलब क्या हुआ? a conductor which is not in contact with anything else। ये कॉपर रॉड कंडक्टर है और वो वुड के कांटेक्ट में रबिंग, यानी बेसिकली होता क्या है, कंडक्टर्स आर नेवर चार्ज्ड बाय रबिंग। कंडक्टर्स को चार्ज करना होता है तो देयर इज मेथड कॉल्ड मेथड ऑफ इंडक्शन। ठीक है, दैट इज यूज्ड टू चार्ज। इंडक्शन एज अ मेथड इज यूज्ड टू चार्ज देम। कैसे करते हैं इसमें तो नहीं बताया होगा, है क्या? अच्छा, हाँ, वेरी गुड। चार्जिंग ऑफ कंडक्टर भी है तो बहुत अच्छी बात है। सो इंडक्शन इज अ मेथड टू चार्ज द कंडक्टर्स। ठीक है, इंसुलेटर्स को भी चार्ज देम बाय रबिंग। क्यों चार्ज कर पाते हैं उनको रबिंग से? क्योंकि ट्रांसफर ऑफ चार्ज जो होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर, दैट इज बेसिकली इरिवर्सिबल। इट डजंट लाइक गो फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी। जिसको चार्ज कर रहे हैं, जिस पर से एक से ट्रांसफर होकर के दूसरे पर आ गया चार्ज, तो वो बैक पहले वाले बॉडी पर नहीं जाएगा, यानी उनके चार्ज और न्यूट्रलाइज नहीं हो पाएंगे। ठीक है, बिकॉज दे आर इंसुलेटर, दे डू नॉट कंडक्ट चार्ज, दे डू नॉट हैव इंट्रिंसिक कैपेसिटी टू कंडक्ट द चार्जेस। ठीक है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर कंडक्ट नहीं कर सकते हैं और देयर इज लिमिटेशन टू देयर कंडक्टर्स एंड देयरफॉर दे बिकम चार्ज। एक बार ट्रांसफर हुआ दे विल रिमेन चार्ज्ड। इज दैट ओके? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। फिर से एक चीज मैं रिपीट कर दूं, सारे मटेरियल के पास प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सारे मटेरियल में नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की काउंट क्या होती है? इक्वल होती है। देयरफॉर द बॉडी बिहेव्स न्यूट्रल। ठीक है, नाउ जो भी मटेरियल है दैट इज जनरली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स। ठीक है, कंडक्टर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? दे अलाउ चार्ज टू फ्लो थ्रू देम। ठीक है, इंसुलेटर की प्रॉपर्टी क्या होती है? दे डू नॉट अलाउ चार्ज टू फ्लो थ्रू देम। इज दैट ओके? नेक्स्ट थिंग इज व्हेन वी रब टू थिंग्स, the charge will get transferred from one body to another body। और कौन सा चार्ज ट्रांसफर होता है? जनरली नेगेटिव चार्ज गेट्स ट्रांसफर्ड। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एक बॉडी से निकल करके दूसरे बॉडी में चले जाते हैं। अब हाँ बोलो। सर इसलिए ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं क्योंकि वो जैसे एटम्स के बाहर होते हैं। यस, आउटर सरफेस पे रहते हैं एटम्स में, इसलिए देयर इज मोर लाइक्लीहुड कि वहीं बाहर निकलेंगे। मोर लाइक्लीहुड क्या, हर बार वहीं बाहर निकलते हैं। ठीक है, whenever we rub one object on the other, the electrons are the one which are going to move from one body to other body। is that okay? यहां पर एक चीज और मैंने बताई, डिफरेंट
element, different substances has different abilities to hold their electrons. Some can do it, some of them hold it more tightly, some of them hold it less tightly. It is easier to charge those things which are holding the electrons less tightly. ठीक है? If something is holding their electrons very tightly, it's impossible to charge them. Is that okay? By rubbing. Why? कैसे करेंगे? अगर वो अपने इलेक्ट्रॉन को पकड़ के बैठा हुआ है तो वो नहीं देता, वो नहीं देता, तो उसको थोड़ी चार्ज करेंगे। जब उसको वो किसी और को देखा तो फिर दूसरा चार्ज होगा ना, तो वो देगा नहीं। हाँ तो ठीक है, तो देख नहीं सकता है। ये हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं कि कैन वी चार्ज एवरीथिंग बाय रबिंग। उसके लिए मैं दो चीजें बता रहा हूं कि जो चीजें अपने इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा स्ट्रांगली होल्ड करेंगे उनको हम रबिंग से चार्ज नहीं कर सकते। इज दैट ओके? और दूसरी चीज मैंने बताई, वी कैन नॉट चार्ज कंडक्टर्स बाय रबिंग। ठीक है, कंडक्टर्स को रबिंग से नहीं चार्ज कर सकते। इंसुलेटर्स को रबिंग से, उन्हीं इंसुलेटर्स को वी कैन चार्ज बाय रबिंग which are holding their electrons not so tightly. Is that okay? So that transfer of electron becomes bit easier. Are we getting this point? बात समझ में आ रही है? दिमाग में घुस रही है? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। हाँ, कंडक्टर्स को चार्ज करना होता है। कंडक्टर्स इसमें क्यों नहीं चार्ज हो पाता है बाय रबिंग? क्योंकि ट्रांसफर ऑफ चार्ज होने के बाद भी कंडक्टर्स की जनरल प्रॉपर्टी ये होती है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को इजीली लूज कर सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा वाला बॉडी जिसके ऊपर उनको हम रब कर रहे हैं, द इलेक्ट्रॉन्स विल गेट ट्रांसफर्ड इजीली। बट उनकी एक दूसरी प्रॉपर्टी भी होती है, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ चार्जेस। तो हम थोड़ा सा जैसे ही आगे और कंडक्टर को बढ़ाएंगे रबिंग के टाइम पर, उसका अगला वाला पोर्शन जो चार्ज लूज हुआ था उसको अचानक से एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, आगे वाला पोर्शन रब करते टाइम अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया, उसके पीछे वाला पार्ट आगे बढ़ेगा और वापस उसको आ जाओ भाई, नहीं उधर ना आओ, इलेक्ट्रॉन आ जाओ भाई। ठीक है, आई विल रिकैप्चर यू। हाँ, नहीं वैसे तुमको भी ऐसे इंस्ट्रक्शन जाएंगे। तुम्हारी हरकतें जो है दे आर एक्सक्लूसिव। ओके, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। दिस इज अ प्रिंसिपल which states that charge can neither be created nor be destroyed. It can only be transferred from one body to another body. ठीक है, और मतलब यूनिवर्स में बोलो या जो भी मटेरियल है, दे ऑल आर मेड अप ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो है, हम ये ऐसा अज्यूम करके चलते हैं कि दैट हैज टू बी इक्वल। ठीक है, और जो भी बॉडी है जनरली अनचार्ज रहती है और इसलिए देयर काउंट हैज टू बी इक्वल। नेवरदलेस वी कैन नाइदर क्रिएट चार्ज नॉट डिस्ट्रॉय चार्ज, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ठीक है, बिफोर रबिंग द टू ऑब्जेक्ट्स, ईच ऑब्जेक्ट इज अनचार्ज्ड, so the net charge is 0. Now when two objects are rubbed together, both are charged equally, but the charge on them are of opposite kind or nature. Thus total charge of the objects before and after rubbing remains the same. This is called conservation of charge. When a glass rod is rubbed with silk, the glass rod is charged positively and the silk is charged negatively by the same amount. Is that okay? जितने इलेक्ट्रॉन्स रॉड से, ग्लास रॉड से ट्रांसफर हुए हैं,
they are with the silk. Is that okay? So वो सारे इलेक्ट्रॉन्स लेकर के सिल्क निगेटिवली चार्ज हो जाएगा और ग्लास रॉड मेरा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा. यस, तो जैसे आयनिक बॉन्ड में वैलेंसी सेम होती है तो वो सेम देता है, वो सेम लेता है. ऑब्वियसली, राइट, वेरी गुड. हाँ, मतलब कहीं और से आना नहीं है तो जो पहला वाला देगा वही दूसरा वाला लेगा. ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का तो कोई सोर्स है नहीं. Similarly, when ebonite rod is rubbed with fur, the ebonite rod is charged negatively and the fur is charged positively by the same amount. Ebonite rod और fur के केस में who is transferring the electron और who is losing the electron? The fur. Silk and glass rod के केस में which is losing? नहीं, ग्लास रॉड इज लूजिंग. ठीक है, तो कौन लूज करेगा और कौन उसको एक्सेप्ट करेगा इज डिपेंडेंट ऑन द इंट्रिंसिक एबिलिटी ऑफ द सब्सटेंसेस विच वी आर गोइंग टू रब. ठीक है, अब मान लो मैं ग्लास रॉड को फर के ऊपर रब करता हूं. कर सकता हूं, किसी ने रोका है? नहीं. कौन सा चार्ज आएगा? क्योंकि दोनों की एबिलिटी देने की है. हाँ, नहीं, ऐसा नहीं होगा. One of them will get negatively charged and one of them will get positively charged. But just by knowing, we don't know many values or any values for that purpose. ठीक है, which can let me or allow me to decide what is going to happen. So there are some other things which we need to know in order to decide that quantitatively. Just by knowing the name of substance, qualitatively compare करके हमको पता चल सकता है, but sorry, qualitatively भी हमको compare करके values compare करके ही पता चलेगा ना, नहीं तो experiment करके पता चलेगा. Is that okay? बट ऐसे क्रॉस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर हम गारंटी के साथ ऐसा नहीं बोल सकते हैं उन दोनों को लेकर के आएंगे तो ये वाला पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव हो जाएगा. देयर आर सम मोर वैल्यूज और सम मोर इंफॉर्मेशंस which we need to know in order to answer these questions. Are we getting this point? या फिर फॉर दैट मैटर पॉजिटिव कौन कौन हुआ था? यहाँ पे फर हुआ नहीं, यहाँ पे फर हाँ ठीक है, रुक जाओ. सिल्क ग्लास रॉड पॉजिटिव हुआ था और फर भी पॉजिटिव हुआ था. एबोनाइट नेगेटिव हुआ था और सिल्क नेगेटिव हुआ था. ठीक है, तो सिल्क और एबोनाइट को रब करेंगे तो भी वी कांट से एग्जैक्टली कि कौन सा पॉजिटिव रहेगा और कौन नेगेटिव रहेगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. एक्सप्लेनेशन ऑफ चार्जिंग ऑन रबिंग. Each body has atoms. Atom is electrically neutral. It has proton positively charged and neutron uncharged inside its nucleus at the center, around which the electrons negatively charged entity revolve in different orbits. The number of electrons in an atom is equal to number of protons. However, some of these electrons can easily leave their atoms. These are called free electrons. Can we underline this? Free electrons. What are free electrons? Electrons that can leave the atoms easily. Very good. क्या हो गया? 156 पे है. Explanation of charging on rubber. पहला पैरा लास्ट लाइन. Explanation of charging on rubbing का पहला.
Last time. हाँ, तो वो दूसरा पहला है ना पे राइट साइड Two objects which are rubbed together are initially neutral or uncharged. When they are rubbed together, the free electrons are transferred from one object to another. The object which gains free electrons becomes negatively charged, while the object which loses free electrons become positively charged. Example, when a glass rod is rubbed with silk, free electrons from glass rods are transferred to silk. The glass rod loses some electrons, so it becomes positively charged, and the silk gains the same number of electrons, so it becomes negatively charged by an equal amount. The charging of glass rod and silk on rubbing is shown in figure 8.24. Glass rod, silk, electrons move going from glass rod to silk. The glass rod becomes positively charged and the silk becomes negatively charged. After rubbing, the glass rod becomes positively charged and silk becomes negatively charged. Charging of glass rod and silk on rubbing. When ebonite rod is rubbed with fur, the free electrons from the fur are transferred to ebonite rod. The fur loses some electrons and it becomes positively charged. And ebonite rod gains the same number of electrons and it becomes negatively charged by the same amount. The charges of ebonite rod and fur on rubbing is shown in figure 8.25. Conductors and insulators. In class 7, you have learned that substances such as silver, copper, aluminium, iron, brass, steel, mercury, carbon, human body, etc. are conductors of electricity. They allow electricity to flow through them. But substances such as cotton, rubber, plastic, wood, paper, glass, ebonite, mica, wax, wool, pure water, etc. are insulator of electricity. They do not allow electricity to flow through them. Water. Yes, pure water. It's Pure. pure मतलब distilled water को बोलते हैं बेटा. मतलब उसमें होने कोई लगा, भी मिनरल्स Present नहीं. बस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। नहीं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी नहीं होता है तो बेटा. फिर water कैसे? H2O होता है हाँ उसमें. वही मतलब दो हाइड्रोजन। सर अपनी एक्स्ट्रा बुद्धि ना डाले ओके सर। और उसको गलत ना करें. ठीक है, वहां सिर्फ H2O होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं होता है. कंपाउंड का बेसिक प्रॉपर्टी ये होता है कि एलिमेंट्स अपने बेसिक प्रॉपर्टी, एलिमेंट्स लूज देयर बेसिक प्रॉपर्टी टू फॉर्म समथिंग न्यू. जब न्यू बना रहे हैं तो वहां पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज नहीं रहेंगी. इज दैट ओके? वेरी गुड. हाँ, so where are we? Pure water. Pure water. Pure water is something which does not have any mineral contained in it. That is, it does not contain anything of positive or negative charged entities. ठीक है? It's basically distilled water and it is a non-conductor of electricity or insulator to electricity. The reason for some substances to be conductors and others to be insulator of electricity is that different substances have different number of free electrons in them. Substance which has large number of free electrons are called conductors, while those with less number of free electrons or no free electrons are called insulators. The conductors allows the charges to flow through the motion of free electrons, but insulators do not allow charges to flow because free electrons are not available for motion.
only insulator can be charged by rubbing or by friction. Conductors cannot be. The conductors cannot be charged by rubbing because charge developed on them will flow away and will not remain with them. Is that okay? That is what I was explaining. Copper ठंडी लग रही है, ठीक है. नहीं नहीं बहुत बंद नहीं गर्मी हो रहा है। बंद नहीं तो हाँ गर्मी हो रही है। बंद Rubbing because charge developed on them will flow away and will not remain with them. Method of charging a conductor. Conductors are charged by induction. Is that okay? You have learned that two insulators can be charged by rubbing them together, but conductors cannot be charged by rubbing it with another conductor. A conductor can be charged by following two methods. First, by conduction. Second, by induction. पर बुक में है बुक में है, अंडरलाइन कर लो. चार्जिंग अ कंडक्टर बाय कंडक्शन. कंडक्शन के थ्रू कैसे चार्ज करेंगे? हाँ, अंडरलाइन कर लो बेटा. So you said induction, ना? हाँ, मैंने बोला इंडक्शन, और यहाँ पर एक और मेथड दिया हुआ है कंडक्शन. कंडक्शन से भी होता है, अभी बताया. कैपेसिटर जो है उसको चार्ज, उस पे चार्ज रहता है. इट इज नॉट गेटिंग चार्ज थ्रू इंडक्शन, इट इज गेटिंग चार्ज थ्रू कंडक्शन. और कैपेसिटर जो होता है वो कंडक्टर भी होता है हमारा. इट इज मेड फ्रॉम टू प्लेट्स विच आर कंडक्टर और ऑफ कंडक्टिंग नेचर. Okay. Charging a conductor by conduction. बुक छीना छी तू सीधा बैठा है अभी भी? तू सीधा बैठ. Sit straight. बुक्स को स्ट्रेट रखो. In this method, the conductor to be charged is touched or brought in contact with a charged body. So basically we have a charged body, a sphere or anything. Suppose इसके ऊपर मैंने पहले से चार्ज काफी सारे डाल के रखे हैं, और इसके कांटेक्ट में अगर एक दूसरे मेटल को लेकर के आता हूँ या कंडक्टर को लेकर के आता हूँ, तो इस पर से कुछ चार्ज इस पर ट्रांसफर हो जाएगा. Is that okay? Now both of them, इसको सेपरेट कर दूंगा तो दोनों के ऊपर कुछ कुछ चार्ज हो जाएगा. ठीक है. ये चार्जिंग के लिए भी कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल होता है. इस पर से सारा का सारा चार्ज इस पर नहीं आ सकता है, और कितना चार्ज आएगा दैट इज डिसाइडेड बाय द फैक्ट दैट जब ये कांटेक्ट में है तो इन दोनों के सरफेसेस का पोटेंशियल करके एक चीज होती है, वो बराबर हो जाना चाहिए. ठीक है. चार्जेस इक्वल नहीं होंगे बट पोटेंशियल बराबर हो जाएगा, तो इस पर से चार्ज इस पर आना बंद हो जाएगा. इज दैट ओके? पहले वाले पर चार्ज है तो पहले वाले का कुछ पोटेंशियल है. हाँ बेटा, जाके बाहर अटेंड कर लो. In this method, the conductor to be charged is touched or brought in contact with a charged body. The conductor gets charged by the similar kind of charge as on the charging body. Okay, ये चीज इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए. चार्जिंग बाय कंडक्शन में चार्जिंग बॉडी जो होता है जिसके ऊपर पहले से चार्ज प्रेजेंट है, उसके ऊपर जो चार्ज होगा the same charge will get transferred on your neutral body. Is that okay? That means they are going to have similar nature of charge. यानी चार्जिंग करने के बाद फिर से दोनों को अलग करेंगे तो what will happen? They are always going to repel each other. Why? Because the nature of charge on both bodies will be of same type. Is that okay? हाँ.
the charge of the charging body is shared by the conductor to be charged. Last line को underline कर लीजिए. तो पेपर पे Charging a conductor by conduction, first paragraph, last line underline कर. Suppose we want to charge a metal rod A with a positive charge. Place it on an insulating stand. Take a positively charged glass rod A, provided for charged glass rod B, provided with an insulating handle or cap, and touch it with metal rod A, as shown in figure 8.26a. Some positive charge of the glass rod B is shared by the metal rod A. Remove the glass rod B. The rod A gets positively charged, figure 8.26b. So A हमारा पहले से है, which is uncharged. B, which was positively charged, उसको brought किया हमने, and we touched that with A, and then we are separating them again. ठीक है? ए पहले चार्ज नहीं था, लग तो ऐसा ही रहा है बेटा. इसमें का पहले. अच्छा, उल्टा बोला हुआ है क्या कि ये पहले चार्ज है? ठीक है, ए को चार्ज कर लो, बी को चार्ज मत करो, फिर बी को कांटेक्ट में लेकर के आओ. ये तो दोनों में ही प्लस का साइन, दोनों ही चार्ज. हाँ, तो गलत ड्राइंग बना दिया. अब मैं क्या करूं? ड्राइंग को करेक्ट करूं. मुद्दे की चीज ये है कि एक चार्ज रहेगा, दूसरा चार्ज नहीं है. जो चार्ज नहीं है उस पर दोनों को जब when we are going to bring them in contact, the charge will get transferred from the charged body to uncharged body. ठीक है? And the nature of charge will be same. That is, the charge which was there on the charged body, that is the charge which will get transferred on the other one. ठीक है? अब इसमें भी प्रोसेस एक्चुअल ऐसा होता है, सपोज पहले वाले बॉडी पर चार्ज जो है पॉजिटिव है, ठीक है, तो दूसरे वाले बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज वो कभी ट्रांसफर नहीं करता है. व्हाट इट डज इज इट सक्स अवे. हेलो, हाँ आनंद, हाँ बोलिए ना. हाँ, माइग्रेशन सर्टिफिकेट मांग रहे थे. ठीक है, तो वो ला करके दे दिया जाएगा, मतलब दे दिया जाएगा. दैट्स नॉट अ बिग इशू. ठीक है, मंडे को नहीं, मैं वो भिजवा दूंगा सैटरडे को. बट माइग्रेशन नहीं जमा किया था हम लोगों ने. ओहो, नहीं, माइग्रेशन करना था. माइग्रेशन तो करना ही पड़ता है. काम पॉजिटिव, उस पर से डायरेक्टली पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर नहीं होता है. जितना अमाउंट ऑफ नेगेटिव फ्री इलेक्ट्रॉन्स को ये सक करेगा दूसरा वाला बॉडी, उतने पॉजिटिव चार्ज उस पर क्रिएट हो जाते हैं. दैट इज व्हाट हैपेंस इन कंडक्शन. इज दैट ओके? या कांटेक्ट के टाइम पर. हाँ, नेगेटिव चार्ज जब होता है वो लाइक किसी एक बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, दैट मींस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है उसके पास, एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन्स. वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल गेट ट्रांसफर्ड ऑन द अदर बॉडी. इज दैट ओके? सो एग्जैक्टली ट्रांसफर होता क्या है हर टाइम पे? इट्स द नेगेटिव चार्ज दैट गेट ट्रांसफर्ड ऑलवेज, whether it is transfer of positive charge or like conduction of positive charge or negative charge. In all the cases only the electrons or the negative charge gets transferred. ठीक है? हम बोलो. So, but how is a like object? How can an object be neutral? If it does not have charge, it is neutral. फिर if it has both the charges equal, positive and negative charges equal, it will be neutral. Sir, but लिखा था अबे रुक जा.
अनचार्ज बॉडी का मतलब होता है यू हैव इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, ठीक है। So when it gives, then it becomes charged, right? The first. Yes, when it will lose negative charge, it will become positively charged. One which will accept that negative charge, it will become negatively charged because number of negative charges will now start dominating the positive charge numbers. ठीक है? तो एनालाइज करना है क्या बेटा? इधर जो आपने कर लो, आपकी इच्छा। बाकी तो हम सारे लोग काफी होशियार हैं ही। हाँ सर वेरी गुड। Again, some positive charge of the glass rod B is shared by metal rod A. Remove the glass rod B, the rod A gets positively charged, as in figure 82.26b. Explanation: the glass rod is positively charged, so it has deficiency of electrons. When it is touched with metal rod, the free electrons of rod A move to glass rod B. Due to loss of electrons in rod A, it becomes positively charged. It may be noted here that an insulator cannot be charged by conduction because it does not contain free electrons, and so it does not allow free electrons from charged body to flow towards itself. Note, to charge the metal rod A negatively, the ebonite rod B rubbed on fur is touched with रॉड ए, ठीक है। यहां पर मार्क कर लो। इसके अगला वाला विल स्टडी इन द नेक्स्ट लेक्चर, इनफैक्ट वी विल कंप्लीट इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर में इस वीक में मैं 2 पेपर्स भेजूंगा फिजिक्स के भी, उनको करके आना है। नेक्स्ट सैटरडे को आई विल डिस्कस देम, ठीक है। सर इस हफ्ते मैथ्स के कितने भेजोगे? मैथ्स के टोटल में फिर से 2 भेजूंगा। सर टोटल हम अब मंडे को लेंगे या सैटरडे का? मंडे को एक पेपर जो ऑलरेडी भेजा हुआ है उसको आप लोग करेंगे। यस।